as the Chief Executive Officer for an incubation center at Parle University. At the outset today, I welcome you all for this webinar on Atmanirbhar Bharat, an opportunity for startup entrepreneurship. This is a joint effort by Parle University and Federation of Industries Association, Gujarat. So I'm thankful to Mr. Vaibhav Choksey and Prakash Varmora ji for giving us this opportunity for hosting this webinar at Parle University. So today we have with us three eminent personalities. We have Mr. Rahul Shukla. So today we have with us is Mr. Rahul Shukla, who is currently President and CEO of SSY Technologies USA. Mr. Prakash Varmora ji, who is President of Federation of Industries Association Gujarat, and also serving as Chairman Emirates Varmora Group. We have with us Mr. Vaibhav Choksey, who is also currently the Chairman Employment Cell of Federation of Industries Association Gujarat. Fine. Okay, so without wasting much of time, I would now introduce you Shri Prakash Varmora ji. He is Chairman Emirates of Varmora Group. Varmora Group is a business conglomerate with a root strongly enhanced in tile, bathware, plastic and forging industry, having a turnover of more than 1,200 crore plus. It is a synonym for innovative happiness in the domestic and international markets. By innovating happiness, they aspire to deliver better values to employees, consumers, and society. Federation of Industries and Association is the apex representative body of approximately 150 industry associations of GIDC estates situated in almost all talukas across Gujarat. Shri Prakash Varmora ji is an ardent reader and greatly influenced by the life of Swami Vivekananda, Sardar Vallabhbhai Patel, Gautam Buddha, and Mahatma Gandhi. At the young age of 44 years, he has devoted himself in contributing towards bringing a transformation in the mindset of businessmen for nation building. His strong belief in the concept of entrepreneur-driven world attracts young and senior entrepreneurs as well as politicians towards him. His progressive thoughts compels all to reflect and introspect towards contribution of self for society and building of a world dissolving boundaries between various religions, districts, state, nation, and finally becoming a part of one world movement. A world that is dynamic, constantly expanding to accommodate new development individuals and community. A world that understands interdependence and is based on respecting diversity for unity. Prakash ji, we are very much glad to have you on board with us, and you would enlighten us with your knowledge on Atmanirbhar Bharat and opportunity for startup and entrepreneurship. So over to you, Prakash sir. Thank you. Good morning to all. 2020 में सेटिंग में टाइम नहीं निकालते हैं, सीधा प्ले करना शुरू करते हैं, तो मैं कम टू द पॉइंट। मेरा जन्म 1973 में सरा करके एक सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट का विलेज है, वहां पे हुआ था, और मेरा एकेडमिक एजुकेशन रूरल में हुआ। और एकेडमिक एजुकेशन की इतनी महत्वता मेरे माइंड में नहीं थी, इसलिए 12th में फेल हुआ और उसके बाद पे बिजनेस में लग गया। पर एकेडमिक एजुकेशन उतना नहीं मिला, पर जो परिवार का जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, एबिलिटी टू डील विथ पीपल, लोगों को कैसे साथ रखना है, कैसे पहले दूसरे का सोचना है, बाद में अपना सोचना है, सबका सोचना है, ये वर्मोरा परिवार के काफी पुरखों से ये चला आ रहा था। रूरल में था, उतना सुखी भी परिवार नहीं था फाइनेंशियली, और परिवार का जो वैल्यूज है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। उस वजह से जो भी बिजनेस किया परिवार ने, उसमें हमें सक्सेस मिला। और मोरबी में जब भी हमारा यूनिट हुआ सिरामिक का 95 में, वो समय पे मोरबी में 6-7 यूनिट ही थे, पर
वर्मोरा का जो सोच था, सबको सिखाना, सबको शेयरिंग करना, तो हमने सभी लोगों को, अपने रिश्तेदार हो, अपने मित्र हो, सबको सिरामिक इंडस्ट्रीज में लेके आए और उसी वजह से सबने मिलके आज मोरबी, भारत का 92% उत्पादन मोरबी सिरामिक कर रहा है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिरामिक हब मोरबी बन चुका। बिकॉज सब लोग साथ में मिलके काम करते हैं। वी आर नॉट कॉम्पिटिटर, वी ऑल आर कंपोनेंट्स। ये भावना से काम किया, इसलिए आज भारत की सबसे ज्यादा पर हेड इनकम मोरबी की ज्यादा है। तो ये मेरा बैकग्राउंड रहा। 2012 के बाद नरेंद्र मोदी के एक वांचे गुजरात प्रोग्राम में मैं गया था और उस प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि मैं सभी युवा मित्र को ये कहता हूँ कि दुनिया में जितने भी ग्रेट लीडर हुए हैं उसको आप रीड कर लो। आप अगर किसी महापुरुष का विजडम है वो आपको 30-35 मिनट में दे देते हैं और उसके बाद आपकी जो बिलीफ सिस्टम है ना वो चेंज हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने रीडिंग करना शुरू किया। मोटिवेशनल दो प्रकार का होता है, एक आउटसाइड इन और दूसरा एक होता है इनसाइड आउट। आउटसाइड इन होता है वो टेम्पररी होता है, इनसाइड आउट होता है वो परमानेंट हो जाता है। इनसाइड आउट हो गया तो मतलब बिलीफ सिस्टम है। तो वर्ल्ड में जितने भी महापुरुष हुए थे वो मेरे और आप जैसे ही थे, पर उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो वो बड़े हो गए। अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है तो हम छोटे रहते हैं, वही फर्क होता है और कुछ नहीं होता है। नरेंद्र मोदी ने वो लेवल के रेफरेंस इकट्ठे किए तो नरेंद्र मोदी बड़ा हो गए, पे पहुंच गए। गांधी जी ने उस लेवल का रेफरेंस इकट्ठे किए तो वो वहां पे पहुंच गए। तो 2012 के बाद मैंने वर्ल्ड के जितने भी महापुरुष हो, चाहे सोक्रेटिस हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, सभी का रेफरेंस इकट्ठा करना शुरू किया और मुझे टोटालिटी में ये समझ में आया जो ये सब लोगों ने किया कि कोई भी शरीर हो उसमें सभी फंक्शन मौजूद है। अपना नोकिया का मोबाइल होता है उसमें खाली बातचीत ही होती है जो पुराना मॉडल था, और ये स्मार्टफोन में सब कुछ फंक्शन होता है। इसके प्ले स्टोर में आप कुछ भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें बहुत फंक्शन होते हैं, बात करने का तो फंक्शन होता है और भी बहुत फंक्शन होते हैं। तो मनुष्य और एनिमल में फर्क ये होता है, एनिमल कुछ लेवल तक ही काम कर सकता है और मनुष्य का माइंड का लेवल उतना स्ट्रांग है कि वो इंक्लूजन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करवा सकता है। तो ये मुझे टोटालिटी में समझ में आ गया और मैं यही आप सब युवा मित्रों को कहना चाहता हूँ, आप में वो हर फंक्शन है जो पृथ्वी पे किसी ने भी जो किया है वो सब कुछ आप कर सकते हो। उसने जो नहीं किया ना वो भी आप कर सकते हो। क्यों? उसने तो 1 2 3 4 5 ही फंक्शन यूज किए थे। गांधी जी थे, उसने अपना आत्मबल ही स्ट्रांग किया था, उसका शरीर बल उतना स्ट्रांग नहीं किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मनोबल स्ट्रांग था, उसका आत्मबल स्ट्रांग नहीं किया था। सलमान खान ने उसका बॉडी स्ट्रांग किया है, आत्मबल स्ट्रांग नहीं किया है। तो आप अगर चाहो तो हर कुछ आप सब कुछ कर सकते हो। एक बार आपने आपका बिलीफ बना दिया, रोल मॉडल ऑफ वर्ल्ड, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड, और आपको 3 चीजों पे काम करना है। तन पे काम करना है, मन पे काम करना है और धन पे काम करना है। ये 3 चीजों पे आप काम करोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। तन पे काम करने के लिए योगा, प्राणायाम, जिम ये सब करो, और योगा में आप बॉडी से लेके, माइंड से लेके, सोल से लेके परम तत्व तक, परमात्मा तक आप सीमित से असीमित हो सकते हो, पॉसिबिलिटी थिंकर हो सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो योगा आपको बहुत डायरेक्शन देगा। मनोबल और आत्मबल, मनोबल और आत्मबल आपका स्ट्रांग हो गया तो आपका जो इल्यूजन करने की आपकी क्षमता है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आज तक जो भी ये पृथ्वी में हमें जो भी दिखाई देता है वो किसी ना किसी का इल्यूजन था। आज हम जो जूम एप्लीकेशन में बात कर रहे हैं ना वो किसी का इल्यूजन था, आज रियलिटी है। हम जिस मोबाइल में बात कर रहे हैं वो किसी का इल्यूजन था, आज रियलिटी है। हम जिस एसी में ये सुन रहे हैं वो एसी किसी का इल्यूजन था, आज रियलिटी में। हम जो ऑफिस में बैठे वो भी किसी का इल्यूजन था, आज रियलिटी है। हम जो स्टेट में बैठे वो स्टेट किसी का इल्यूजन था, आज रियलिटी था। हम जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, हम जो कंट्री में बैठे
हम जो पृथ्वी पे बैठे वो पृथ्वी भी किसी की इल्यूजन थी, आज रियलिटी है। तो ये अपने आजू बाजू में जो कुछ भी है, आज जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, ये हिंदी भी किसी का इल्यूजन था, आज रियलिटी है लैंग्वेज। तो कुछ भी चीज किसी का इल्यूजन था, आज रियलिटी है। हमारा बर्थ भी किसी का इल्यूजन था, आज हम पृथ्वी पे रियलिटी में है। तो कुछ भी चीज होती है, पहले इल्यूजन होती है, बाद में रियलिटी हो जाती है। तो ये मनोबल और आत्मबल आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको बिलीव आएगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल और एवरीथिंग इज इजी। इंक्लूजन, ये सूर्य चंद्र और पृथ्वी भी किसी ने बनाया है। ये मोबाइल तो ये सब छोड़ो, राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया, वो तो छोटी सी थे, उसने तो खाली असेंबल किया था। स्टीव जॉब्स ने मोबाइल में असेंबल ही किया है, जूम ने असेंबल ही किया, नया कोई क्रिएशन नहीं किया, को क्रिएशन नहीं किया है। एनिमल एनिमल बना ना, वो भी किसी का इल्यूजन था। पौधा बना, वो इल्यूजन था। तो कहने का मतलब है, आप मन से इतने एम्पावर हो जाओगे, आपको सब कुछ जो ऑर्डिनरी लोगों को नहीं दिखती, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको आपके अंदर बिलीव करना है। और मनोबल और आत्मबल, नरेंद्र मोदी क्यों बड़ा प्रधान बने, उसने खुद ने पहले मान लिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले बिलीव आप खुद आपके करोगे, उसके बाद दूसरा आपके ऊपर बिलीव करेगा। तो बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, और वो कंटिन्यू प्रोसेस में करोगे तो हो जाएगा। तीसरी चीज है धन की। आज दुनिया वेल्थ क्रिएशन की लैंग्वेज समझती है। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकशाही देश भारत है, और दुनिया का सबसे पुराना देश अमेरिका है, लोकशाही देश। आज जनसंख्या के हिसाब से विश्व गुरु भारत को नहीं डिक्लेयर करेंगे, भारत को विश्व गुरु डिक्लेयर करेंगे उसके फाइनेंशियल पावर से। 1947 में अपना देश आजाद हुआ, वो समय पे $1 इक्वल टू 1 रुपीज हमें मिला था। नोइंगली अननोइंगली हमने वेल्थ क्रिएशन के ऊपर काम नहीं किया, इसलिए अपने यहाँ से बहुत स्टार्टअप नहीं निकले, बहुत बिजनेसमैन नहीं निकले, और वर्ल्ड में हम नहीं गए। यहाँ से कोई ब्रांड नहीं निकली, कोई कंपनी नहीं बनी, और जो भी छोटा मोटा सक्सेस मिला उसको सक्सेस मान के वो बैठ गए। भारत से शुरू होके पूरे वर्ल्ड में नहीं गई, इसलिए अपना जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हुआ। क्यों? हमने धन के ऊपर काम ही नहीं किया है। और 70 ईयर हो गए, अपने लोकसभा विधानसभा में भी कभी अर्थशास्त्र के ऊपर बात ही नहीं हुई। अपने यहाँ जय जवान जय किसान तक नारा चला। जवान और किसान से हम वर्ल्ड के सुपर पावर में नहीं आ सकते, वर्ल्ड विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। अपने को एंटरप्रेन्योर, जय एंटरप्रेन्योर के नाम पे काम करना पड़ेगा। अगर हम गरीब रहते हैं तो एक श्राप है। आज मोरबी का अनपढ़ आदमी भी 100 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर दिया। 10 करोड़ का आदमी तो हर कोई आदमी जो पहले जॉब करता है, एक सुपरवाइजर है, वो आज 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ का मालिक हो गया। तो अनपढ़ आदमी ने, मोरबी में अनपढ़ आदमी ने भी राष्ट्र के लिए वेल्थ क्रिएशन किया। तो हर कोई आदमी वेल्थ क्रिएशन के काम करेगा तो ये राष्ट्र गरीब राष्ट्र से अमीर राष्ट्र हो जाएगा। और वेल्थ क्रिएशन तभी होगा, अकेले से आदमी से वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। समूह में काम करोगे तो लेस एफर्ट पे मोर फन और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा। अपने यहाँ क्या पता है, मिलके काम करने का वो माइंडसेट ही नहीं बना है। आज मोरबी की, जो हम सब लोगों की कुछ लेवल की तरक्की हुई है, उसका रीजन ये है कि हम 15-20 लोग मिलके काम करते हैं। कोई मार्केटिंग संभालता है, कोई सेल्स संभालता है, कोई फाइनेंस संभालता है, बस क्यों भले उसके लेवल का हो। कोई वो हार्वर्ड में पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो कोई कॉलेज में नहीं गया, पर उसके लेवल का माइंडसेट है। जिसकी जो मास्टरी है वो सब डिवाइड कर लेता है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का लेवल फास्ट हो जाता है। तो टीम बन के काम करते हैं तो वर्मोरा क्रिएट हो गया, सिंपलो क्रिएट हो गया, ऐसे मोरबी में बहुत हो गए। अभी अपने समझ में आया कि अभी ये टाइम आ गया लोकल से ग्लोबल बने। इस कंपनी में वर्ल्ड के ग्लोबल डायरेक्टर को लाए, ग्लोबल सीटीओ को लाए, ग्लोबल सीएफओ को लाए, ग्लोबल सीएमओ को लाए, तो ये कंपनी भी बहुत बड़ी बन सकती है। तो इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब धन पे काम करना है, और कुछ भी चीज सीखने चाहोगे ना तो सीख सकोगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। अनपढ़ आदमी भी साइकिल चलाना सीख सकता है, एकेडमिक एजुकेशन नहीं मिला ना तो भी वो साइकिल का ड्राइवर बन सकता है। अनपढ़ आदमी भी बाइक चला सकता है, एकेडमिक एजुकेशन नहीं मिला तो भी वो कर सकता है। अनपढ़ आदमी भी प्लेन चला सकता है, अगर उसको उस लेवल का ट्रेनिंग मिल गया तो। अनपढ़ आदमी भी रॉकेट चला सकता है, एकेडमिक है जो, अनपढ़ की मैं बात करूं
तो एकेडमिक एजुकेशन नहीं मिला वो आदमी भी रॉकेट चला सकता है, एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है अगर वो अपने आप को मान ले। और जब सीखने की बात आ जाए, जब तक अपने को नहीं आता है ना, तब तक करोड़पति बनना मुश्किल है, अबजपति बनना मुश्किल। जिस दिन अपने माइंड में बैठ गया ना, वो अबजपति बनना आसान है। प्लेन तब तक मुश्किल है जब तक अपने को नहीं आता है, तब तक। जैसे ही प्लेन आ गया, एफर्टलेसली आप प्लेन चलाते हो। जब कार नहीं आती थी वो कार मुश्किल थी, जब कार आपके माइंड में बैठ गई तो आपके लिए कार बहुत आसान हो गई। कितनी भी कार आगे पीछे आ रही है, आपको इजीली कर ले, एफर्टलेसली आप चला पाओगे। उस तरह का तन मन धन का अगर सबकॉन्स में डाल दिया तो एफर्टलेसली तन का, मन का और धन का ग्रोथ होगा। और तन मन धन का ग्रोथ हो गया तो ह्यूमन है वो नेक्स्ट टू गॉड नहीं, इक्वल टू गॉड। ये यात्रा में हम गॉड तक जा सकते हैं, गॉडलीनेस है। और टोटालिटी में ये पृथ्वी पे आए हैं तो ये पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी का कॉन्स्टिट्यूट मैंने बहुत बार पढ़ चुका हूँ। भगवान का कॉन्स्टिट्यूट यहाँ से कुछ कोई लेके नहीं जा रहा है, डाई एम्प्टी होना चाहिए। बुद्ध आए तो भी डाई एम्प्टी गए, राम भी डाई एम्प्टी गए। हमें जो कुछ भी यहाँ मिला है यहाँ वापस दे के जाना, बैक टू सोसाइटी। और बैक टू सोसाइटी नहीं किए तो वी आर एनिमल। अगर आप ह्यूमन हो तो बैक टू सोसाइटी करो और आपका नॉलेज किसी को दे दो, आप सब कुछ डेलीगेट कर दो। और जो आदमी मृत्यु के समय पे खाली है, उसको जो अनुभव मिला वो भी शेयर कर दिया, जो भी शेयर कर दिया वो ग्रेट है। बुद्ध ने अपने सभी अनुभव शेयर कर दिया। कोई ने वेल्थ अर्ज की है, वो वेल्थ दे दिया। उसके मरने के बाद उसकी विल नहीं बनाई, उसके पहले दे दे, चाहे बेटे को दिया या राइट पर्सन को दे दिया। जो दे दिया ना वो महान, नहीं दिया ना वो महान नहीं। और आप मरने के बाद कोई इसका मतलब नहीं होता है, आप जिंदा जिंदा दे दो ना तो उसका मतलब है। तो हम सब लोग गुड से ग्रेट की यात्रा करनी है और ग्रेट से गॉड की यात्रा करनी है। और मैं अभी इस दिशा में लगा हुआ हूँ। 2012 के बाद अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। मैं आई एम स्टूडेंट कि भाई क्या है, बुद्ध क्यों बुद्ध थे, मैं क्यों बुद्ध नहीं हूँ। वॉरेन बफेट क्यों वॉरेन बफेट, मैं क्यों वॉरेन बफेट नहीं। और मुझे बुद्ध वॉरेन बफेट का कॉम्बिनेशन आप सब लोगों में चाहिए। मेरा तो एक लेवल का हो चुका और मेरी ये भावना है कि मैं यूथ को ये कनेक्ट कराऊं। और जिससे यूथ है ना वो बुद्ध जितनी शांति ले, बहुत अच्छा शरीर ले, जो ऋषि मुनियों 200 300 400 साल जिंदा रहते थे। जापान का आदमी 100 साल अभी जिंदा रह रहा है, उस लेवल का ले। और वेल्थ क्रिएशन के बाबत में वो मुकेश अंबानी बने और स्टीव जॉब्स बने, मार्क जुकरबर्ग बने, रितेश अग्रवाल बने। और दूसरा, देने की बाबत में वो खुद के लिए कम रखे और किसी और को शेयरिंग करके दे दे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेल्थ क्रिएशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो लेके फिर दे देना है, शेयरिंग करना है, क्रिएट करना है और दे देना है। 100 हाथ से लेना और 1000 हाथ से बांट देना है। तो इससे राष्ट्र की गरीबी निकले, विश्व का कल्याण हो, इस दिशा में हम काम करें। तो बस आगे टेक्निकल सेशन वैभव भाई लेंगे, राहुल जी, राहुल शुक्ला जी बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। उसका तो उसको सुनने का एक वो अलौकिक आनंद है। तो सभी को सुन के वैभव भाई टेक्निकल सेशन लेंगे और मैं आशा रखता हूँ कि सुनने वालों में से ऐसे इंडिया से महान विभूति निकले। और गुजरात वो तो देवों की भूमि, यहाँ गॉडों की भूमि है। यहाँ से बहुत महान आदमी हुए हैं और आज तक जो हुए वो बहुत उंगली से गिना सके या कैलकुलेटर में आ जाए उस लेवल के। अभी कैलकुलेटर छोटा पड़ जाए, उस लेवल के महान आदमी गुजरात से क्रिएट हो। और मैं जब बोलता हूँ कि विश्व, गुजरात को हमें जापान या अमेरिका नहीं बनाना है, विश्व को हमें गुजरात बनाना। मतलब जापान का अच्छा में ले लेना है, अमेरिका का अच्छा लेना है और जो गुजरात की जो अच्छाई है वो सब में बांट देनी है और सबको गुजरात बनाना है। भाईचारा की भावना, बंधुत्व की भावना, सबके कल्याण की भावना और सबका विकास हो, ये भावना। और एक गुजराती जहाँ जाता है वो सभी को अपने साथ जोड़ देते हैं, उस लेवल का गुजराती। मैं लास्ट एक बात कह के मेरी बात पूरी करूंगा। एक गांव था, वो गांव में सब लोग हेल्थ बहुत अच्छी थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे, योगा प्राणायाम करते थे, बहुत वैल्यूज बेस उसका स्ट्रांग था, बहुत संस्कारी थे, एक दूसरे का आदर करते थे, एक दूसरे को मदद करते थे। तो हर एंगल से वो सुखी थे। उस गांव में महात्मा आए और वो गांव के विचार से, उसके जीवन से प्रभावित हुए। तो 2 दिन रहे गांव में, गांव लोगों ने उसकी बहुत आस्था शुद्धता की। उसके पास जो ज्ञान था वो विजडम लिया गांव ने
और निकलते समय गांव लोगों ने बोला कि महाराज हमें कुछ आशीर्वाद दो। तो महाराज ने बोला मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका गांव, आपका शहर है ना, वो पूरी दुनिया में बिखर जाए। गांव वाले जैसे आपकी इच्छा, आपके आशीर्वाद। वहां से निकल गए, दूसरे गांव गए। तो दूसरे गांव में लोग आलसी आदमी थे, एक दूसरे की ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे को हैरान परेशान करते थे। तो बहुत नेगेटिव गांव था। तो स्वामी सुबह गए, दोपहर तक तो कंटाल गए, दोपहर के बाद गांव छोड़ने के लिए निकल गए। तो निकलते समय साधु ने गांव को श्राप दिया कि आपका पूरा गांव लॉकडाउन में फंसा रहे, ये गांव का एक भी आदमी बाहर नहीं जाए, ये गांव का आदमी यहाँ का यहाँ रहे और यहाँ से यहाँ ही मर जाए। तो वहां से तो निकल गए। उसके साथ शिष्य था, बोला महाराज आपको जिसको आशीर्वाद देना था उसको श्राप दे दिया और जिसको श्राप देना था उसको आशीर्वाद दिया। तो महाराज ने बोला नहीं, तेरा जो समझ था ना वो गलत है। मैंने जिसको आशीर्वाद दिया ना वो गुजरात के लोगों थे, वो लोग पूरी दुनिया में जाएंगे तो सभी लोगों को गुजरात बनाएंगे। एक गुजराती जहाँ जाता है वहां गुजरात बना देता है। तो वो बाहर जाएगा तो सभी लोगों को भाईचारा, भावना, ये सब सिखाएगा। इसलिए उस गांव को मैंने आशीर्वाद दिया। और दूसरा जो गांव था वो यादवा स्तरी वाला था, मतलब एक दूसरे का झगड़ा, इसलिए मैंने उसको श्राप दिया कि आप बाहर नहीं जाओ। आप बाहर जाओगे तो आप पॉलिटिक्स ही सिखाओगे, क्रिएटर का नहीं सिखाओगे। चढ़ने का, लड़ने का आप पॉइंट ही ढूंढोगे कोई ना कोई हिसाब से, छोड़ने का पॉइंट नहीं ढूंढ। इसलिए उसको मैंने श्राप दिया और इसको आशीर्वाद दिया। तो मैं गुजराती भारती को, तो हमें गांधी जी का आशीर्वाद मिला है। हम सब विश्व गुरु होके पूरे विश्व को भारत बनाए, पूरे विश्व को गुजराती बनाए और पूरे विश्व के कल्याण की कामना करें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे लेके जाए और पूरे विश्व से गरीबी मिटाए, पूरे विश्व के सभी लोगों को मेन स्ट्रीम में लाए और सभी लोग विश्व के ग्रोथ के लिए काम करें और पृथ्वी को हम सब मिलके इसको एक स्वर्ग की तरह बनाए। इन टर्म्स ऑफ कल्चर हो, इन टर्म्स ऑफ हर चीज हो, और विज्ञान और आध्यात्मिक का समन्वय हो, उससे वर्ल्ड बेटर हो सकता है। अगर ये सब नहीं करे तो अपना एजुकेशन का कोई उतना मतलब नहीं रहता है। अगर हम पढ़े लिखे आदमी होने के बाद भी खुद के लिए काम करें और खुद के लिए काम करें तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं। हाथी का भी इतना पेट बड़ा होने के बावजूद भी उसका पेट तो भर जाता है, अपना तो पेट छोटा है। तो इतने एजुकेटेड होने के बावजूद अगर हम पूरी दुनिया का कल्याण नहीं करते हैं और उस लेवल की सोच नहीं रखते तो एनिमल और अपने में कोई फर्क नहीं है। तो हम सब लोग ह्यूमन से ग्रेट ह्यूमन बन के पूरे वर्ल्ड के ग्रोथ के लिए काम करें। मैं यहाँ पे मेरी बात को रखता हूँ। थैंक यू। अस्तु। भारत माता की जय। जय जय गणेश। प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी ये बातों में वेरी मच श्योर कि जो स्टूडेंट्स है और जो फैकल्टीज है या अदर पीपल है उनको मोटिवेटिंग फील हुआ होगा। और आपने जो कुछ सही बातें जो कही है, इनफैक्ट आइंस्टाइन ने भी ये कहा था कि एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो जो आपकी ह्यूमैनिटी की बात है, आपकी भाईचारे की बात है, आई थिंक इस पर्टिकुलर टाइम में जो कोविड-19 लेके आया है, all of us need to work very close to each other and to support each other. तो थैंक यू प्रकाश जी आपकी बात रखने के लिए। इन बीच वेलकम डॉक्टर एच.एस. विजय कुमार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ही इज बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफ फार्म यूनिवर्सिटी। उन्होंने 37 साल का करियर एक्सपीरियंस है टीचिंग और होटल मैनेजमेंट में। एंड आई एम वेरी मच ग्लैड टू शेयर कि इस पर्टिकुलर टाइम में भी जहां कोविड-19 की वजह से लोगों को पे कट का टेंशन सता रहा था या लोगों को सैलरी कट है, पे ऑफ का टेंशन सता रहा था, इनकी जो टॉप मैनेजमेंट है बिकॉज ऑफ देम हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करने दिया। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ने नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, मोर देन 200 स्टाफ्स को रिक्रूट भी किया है करंटली इस सिनेरियो। एंड जो बाकी यूनिवर्सिटीज फेस कर रही है ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह वगैरह, because of the vision of our great leaders, top management, Dr. Vijay Kumar, Dr. Aman Patel जो provost है, Dr. Devanshu Patel जो president है, इन लोगों के विजन के कारण we were very successful in taking online exams of more than 30,000 students. So we have all started our curriculum, and Vijay Kumar sir, we are glad to have you with us. I would like to request you to please share few words on this occasion and share your thoughts on our mission of our Honorable Prime Minister, Shri